back to this cricket channel brought to you by Dafa News. आज हम बात कर रहे हैं officially the shortest test match in history के बारे में दोस्तों. 642 deliveries, तकरीबन 4.5 सेशन यानी कि 1.5 दिन के अंदर दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन न्यूलैंड्स इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका 1.5 दिन के अंदर तकरीबन द क्विकेस्ट shortest result in what over 2500 और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ओवर 2500 और टेस्ट मैचेस इंडिया जीत गई. काश एक और टेस्ट मैच होता तो हो सके टीम पहली बार साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका जाकर एक टेस्ट सीरीज जीत जाती. बट लाइक वी डिस्कस मेनी टाइम्स on these live streams, two test matches was always going to be a strange experience. But hats off to India to bounce back from that 3-day drubbing at Centurion to come back in the New Year's test match and claim victory, which means that Rohit Sharma की टीम वापस इंडिया जाएगी 1-1 सीरीज के साथ. हाँ, 31 साल से ज्यादा हो गए कि कोई भी इंडियन टीम साउथ अफ्रीका जाकर एक टेस्ट सीरीज जीत चुकी है. But there are positives in a 1-1 shared scoreline, especially, like I said, when you look back at the first test match, the Boxing Day test match, which was over in 3 days. Alag discussion, a topic for a different day when we get down to brass tacks and talk about the health of test cricket. We'll do a show someday when आप और मैं हम दोनों मिलकर बात करेंगे कि एक टेस्ट सीरीज कंबाइन 2 टेस्ट मैच 5 दिन से कम में खत्म हो गया. ये कैसे हुआ? But for now, let's celebrate the positives from this match, especially for India. Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Mukesh Kumar, Virat Kohli got a good 46. Again, nobody really scored. There were 6 ducks in India's first innings, and a 7th player didn't even get off the mark. But a low-scoring match on a very, very tough Cape Town track. I'm not going to say it was remotely dangerous. I'm not going to say it was a poor test wicket. Yes, you don't want to see batsmen challenge that much, to my belief. You don't want to see too many balls which on any other day would be playable, suddenly leaping up and spitting up. But was it a poor test match wicket? I think the jury is still out on that one. I'm surprised that it lasted literally a day and a half. Dean Elgar, what a fantastic cricketer he's been for South Africa in the test format. His final test match basically was over in a day. The guy batted twice. Tristan Stubbs, a young debutant, his debut test match was virtually over in one day because he batted twice on the same day. South Africa bowled well. I thought they produced a lot of brilliant deliveries. India combined. Jadeja didn't even bowl a single ball in this test match. India combined bowled very, very well. Again, questions will be asked, rightly so, of what Prasidh Krishna was doing in those 2 test matches. But overall, let's forget the nitty-gritties. Let's look at a fantastic win for India, which sends them back, like I said, with a 1-1 scoreline. Aiden Markram played, to my mind, the best test knock of his career. Really showed people how to apply yourselves. कैसे उस मुश्किल पिच पर जहां पेस बहुत थी, उछाल काफी थी, some variable bounce, but again, not that bad to be put in the dangerous or the poor category because आप देखेंगे जितने विकेट गिरे इस पूरे मैच में एक भी LBW नहीं था. इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाइवली पिच था. One of the quickest Cape Town wickets. You saw some tremendous fast bowling from both the teams, but the fact that not one LBW was witnessed, it seems, if you've not watched the match, that the players were caught on the back foot, perhaps undone by bounce. They were surprised by bounce. It also says maybe the batsmen of these two teams lacked the necessary skill या nuance आप कह सकते हो जो कि एक previous generation के पास था कि बॉल को लीव कैसे करते हैं. एक मेरे दोस्त हैं पुराने कॉलीग हैं अमित गुप्ता करके, उन्होंने कल ट्वीट किया था कि क्या जीएसटी पे टैक्स लगा था, लीव करने पे टैक्स लगा था. It was a funny tweet, but it said so much. Why were so many batsmen on South Africa's side and India's side not comfortable leaving the ball? बॉल को छोड़ना, लेंथ पे छोड़ना, मूवमेंट पे छोड़ना, उछाल पे छोड़ना टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों एक कला है, which unfortunately in this series not enough batsmen on both sides had. खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आप और मैं, बट फिलहाल a win that's left me surprised because जैसे कि आप जानते हैं पहले टेस्ट मैच के बाद मैं काफी लो ऑन कॉन्फिडेंस था कि ये इंडियन टीम कुछ कर पाएगी. But hats off to the bowling, hats off to those few sparks from the batsmen. Still, a lot of problems remain with this Indian team. Shreyas Iyer being one of them, Shubman Gill being one of them. When teams play overseas, यानी कि एशिया के बाहर,
But for now, a fantastic win, the shortest test match ever, just 642 deliveries. We'll do a show somewhere down the line on what these test matches actually mean to test cricket's future. But for now, आप और मैं हम डिस्कशन करेंगे on India's win at Cape Town. चलिए, इसी बात पर काफी सवाल आ चुके हैं. लेट्स सी कौन कौन जुड़े हैं मेरे साथ आज. 4 दिन की ब्रेक के बाद मैं तो वापस आ चुका हूं. मैं अंडमान गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स. आई एम बैक एज ऑफ दिस मॉर्निंग एट 2 a.m. Surya Vikram Singh saying we may have won the match, but the batting still remains a big concern. Massive, massive, massive concern. India cannot win the WTC batting like this. From Virat and KL, everyone struggled. I'm worried what will happen when Rohit Kohli retires. So am I, but we'll cross that bridge when we get there. मनीष कह रहे हैं ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. बिल्कुल 1.5 दिन में खत्म. The fastest test match of all time. Shreyas saying Gill is overhyped and Shreyas is not suited for these pitches. Yes, like I've been saying on several shows, यहाँ पे भी और अलग प्लेटफॉर्म्स पर, मेरे हिसाब से इंडिया, बाकी देश को छोड़िए, इंडियन क्रिकेट को अगर एक्चुअली कुछ हासिल करना है, नंबर 1 रैंकिंग छोड़िए, अब मैं पूरे 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 यकीन से कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से रैंकिंग्स से मुझे घंटा फर्क पड़ता है. आप नंबर 1 बैट्समैन हो, आप नंबर 1 टीम हो, नंबर 1 बॉलर ऑलराउंडर, मुझे फ्रैंकली सबसे कुछ लेना देना नहीं है. आप नंबर 1 टीम हो तीनों फॉर्मेट में, बट आप बाहर जाकर अच्छी सीरीज नहीं जीत पाते हो, और उससे बड़ी बात आप आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत पाते हो. नाउ the problem, like Shreyans said, is Gill's average is going to continue to dip in Test cricket. Shreyas Iyer has probably almost played himself out of outside of Asia Test matches because इन लोग को समझ नहीं आ रही कि टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कैसे करनी है. आई एम सेइंग इंडियन क्रिकेट शुड नाउ गेट टू दैट स्टेज वेयर आप घर पे या एशिया के अंदर आप एक किस्म के 11 चुनिए, और एशिया के बाहर आप एक अलग किस्म के 11 को चुनेंगे. एशिया के अंदर श्रेयस अय्यर इस टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं स्पिन के अगेंस्ट. ये हम देख चुके हैं इनके 9-10 टेस्ट मैच में एशिया के अंदर, लेकिन एशिया के बाहर ये स्ट्रगल करेंगे. इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं, स्ट्रगल किया. साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, स्ट्रगल करेंगे. इनका जो टेक्निक है खासकर छोटी गेंद के सामने, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा. लेकिन कोई बात नहीं, उनको आप एशिया के अंदर खिलाइए. हम क्यों, why does the Indian cricket structure more than other teams seem so hell bent on playing the same 11 across different formats? Get to that stage where you pick a certain 11 based on Indian conditions. इंडिया में भले आप 4 स्पिनर खिलाइए, बाहर केवल एक, but get to that. Stop overlapping players across 3 formats. अगर शुभमन गिल नहीं चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और लड़का नंबर 3 पे ऐसा खेल रहा है जैसे कि उनको 2 सेशन में मैच खत्म करना है, भाई ये नहीं चलेगा टेस्ट मैच में. तो अभी जब शुभमन गिल एशिया के बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं और अय्यर एशिया के बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको ड्रॉप मत करना, इनको आप सिर्फ घर पे खिलाइए. Why do you want to persist with players who have a genuine short ball problem in conditions when the short ball is going to be very, very common? Surya Vikram saying in 2-3 years, Rohit Kohli, Shami will retire. Less than that, maybe a year and a half. Losing 6 wickets for no runs shows that we are still not mentally strong. Yes, I think it does. I mean, India won the match because the bowlers were brilliant here. But like I've been saying, batting बहुत बहुत खराब है एशिया के बाहर. Rahul is saying, sir, your prediction for India versus England, my series 4-0 or 4-1 match may draw. Um, India, to my mind, Rahul, are still the favorites for that series, but it's not going to be easy. If they play rank turners, just like South Africa played bouncy tracks, it backfired, right? Turning tracks against England might backfire. I've said this before on the basis of what Todd Murphy, Matthew Kuhneman, and Nathan Lyon did earlier last year in the BGT. England are coming with far less experienced spin options, but raging turners, slow turners, they can backfire. So for me, the batting is the problem, especially घर पे भी. अक्सर हम कहते हैं कि घर पे इंडिया को हराना नामुमकिन के बराबर है. That might start to change with these very obvious batting problems in this Indian team. सुबोध पूछ रहे हैं क्या रोहित शर्मा का टेस्ट टेन्योर एज कैप्टन एक्सटेंड होगा इस हिस्टोरिकल केप टाउन टेस्ट के बाद? देखो, ये सवाल थोड़ा इलॉजिकल है क्योंकि ऐसा कहीं तय नहीं हुआ था कि रोहित शर्मा अगले सीरीज में ड्रॉप होने वाले हैं. सबको पता है कि WTC फाइनल 2025 तक चाहे टीम पहुंचे तक ना पहुंचे, उनका टेस्ट टेन्योर एज कैप्टन वहां तक रहेगा. उसके आगे हरगिज नहीं है. सो अगर ऐसे कुछ खबरें आई थी, कुछ कुछ खुफिया रिपोर्टर्स ने कुछ कहा था कि इस सीरीज के ऊपर
इनका फ्यूचर डिपेंड होगा, तब इस सवाल का जवाब मैं दे सकता था। लेकिन सुबोध, बात यह है कि इनका टेस्ट कैप्टनसी खतरे में नहीं था। ये अनलेस ही रिटायर्स हिमसेल्फ और ही गेट्स इंजर्ड, रोहित शर्मा 2025 जून तक टेस्ट कैप्टन ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। निमेश कह रहे हैं 2 मैच सीरीज नॉट लुक लाइक टेस्ट सीरीज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मैच। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हो ये मैं बहुत बार कह चुका हूं कि 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला में जो टीम पहला टेस्ट मैच जीत जाती है वो सीरीज हार नहीं सकती, और इसमें मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं है। किसको देखना है 1-1? भाई हमें रिजल्ट चाहिए बॉस। मिस्टर शतरंज, क्या नाम है, मिस्टर शतरंज कह रहे हैं कला ऑफ लीविंग द बॉल आई सी ओनली इन ऑजीज इन दिस जनरेशन। Yes, and also the Kiwis. Kiwis leave. Kane Williamson, Tom Latham, Henry Nichols, डेविन कॉनवे, ये अच्छी तरीके से बॉल को लीव करते हैं। बट बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत बहुत कम टीम्स कंसिस्टेंटली बॉल को लीव कर पाते हैं। Sports fan is saying because of Siraj masterclass in first spell, India were always in dominating position in this test. Prasid has been horrible. Mukesh has impressed a lot and can be persistent. बिल्कुल सही बात है। जब आप 55 पे ऑल आउट हो जाते हो लन से पहले एक टेस्ट मैच में, तो आप ऑलरेडी उस मैच में बहुत पीछे हो चुके हो। अगर साउथ अफ्रीका 115 120 का टारगेट इस टीम को देती, फिर शायद वो जीत जाती, बट 79 वाज नेवर गोइंग टू बी दैट टफ। रही बात प्रसिद्ध कृष्णा की, बॉलर अच्छे हैं, खराब बॉलर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो बोला गया या जो सोच विचार लेकर वो साउथ अफ्रीका गए पहली बार, वहां वो मार खा गए। हाइट अच्छी है, गति कुछ खास नहीं है, बट उन्होंने गलत लाइन और लेंथ से बॉलिंग करी। सो अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू जज हिम बेस्ड ऑन 2 बैड टेस्ट मैचेस। आई थिंक ही इज बेटर देन दैट, बट व्हाट वाज द मैसेज गिवन टू प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे इस पे शक है। रही बात मुकेश कुमार की, तो मैं उनको भी उसी कैटेगरी में डालूंगा। वो मात्र 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। वेस्ट इंडीज में उन्होंने कुछ नहीं किया था, और इस टेस्ट मैच में जहां पे उन्होंने रन दिए लेकिन अच्छी बॉलिंग करी, इट वॉज इन नियर परफेक्ट सीम बॉलिंग कंडीशन। तो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से कि प्रसिद्ध कृष्णा कभी नहीं खेलेंगे 2 खराब टेस्ट मैच के बेसिस पर। मैं मुकेश कुमार के एक अच्छे टेस्ट मैच के बेसिस पर यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया या मैं उन्हें आगे खिलाऊंगा। मैं मुकेश कुमार जैसे सीम बॉलर को उन कंडीशंस में देखना चाहूंगा, और ये पर्सनली ये मेरी बात है, मेरी बात कौन सुनेगा, उन कंडीशंस में जहां पे सीम एग्जैजुरेटेड है, जैसे कि इस मैच में जहां पे बाउंस एग्जैजुरेटेड है। इंडिया में मैं कभी मुकेश कुमार को नहीं खिलाऊंगा, यहां बहुत बहुत मार पड़ेगी। हो सके न्यूजीलैंड के कुछ वेन्यूज पे मैं उन्हें खिलाऊं, हो सके इंग्लैंड के 3-4 वेन्यूज में मैं उन्हें खिलाऊं। मैं मुकेश कुमार को ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि वहां के ट्रैक्स इस किस्म की उछाल हमें देखने को नहीं मिलता। सो यस, वेरी गुड सेकंड टेस्ट मैच एंड वेरी पुअर 2 टेस्ट मैचेस फ्रॉम कृष्णा, बट टू स्मॉल सैंपल साइज टू एक्चुअली से कि उनका फ्यूचर क्या है। Shankar is saying, sir, why Gill flop in overseas countries? I'll tell you why. It's his technique. He has a good back foot technique. He will score runs in Australia. I personally am kind of surprised, Shankar, that he did not do so well in South Africa. इनका बैकफुट गेम अच्छा था, लेकिन अभी क्या है, एक तो जो उन्होंने हासिल किया था एक कम समय में, वो एज एन ओपनर था। अब अचानक वो नंबर 3 पे गए। नंबर 3 पे खेलना बहुत अलग आपको टेम्परमेंट की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि जिस प्लेयर के पास, यानी कि शुभमन गिल के पास 2 पेस पिचेस के ऊपर इनका गेम वीक है। हमने देखा ये वेस्ट इंडीज में, और हमने देखा इस सीरीज में भी। इनका टेक्निक और टेम्परमेंट पे बहुत बहुत सवाल उठे हैं, और भी उठेंगे, बिकॉज ही हैज ऑल द शॉट्स, ही कैन प्ले ऑफ द बैकफुट, ही कैन ड्राइव द बॉल लाइक अ मिलियन बक्स। पर उनका जो एक अप्रोच है नंबर 3 पे कि मैं 80-82 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, भाई आप एक नंबर 3 हो, आप भले 1 घंटे के अंदर 15-20 रन बनाए, किसी को शिकायत नहीं होगी। अभी शुभमन गिल अपने आप से जूझ रहे हैं कि नंबर 3 पे खेलना, जहां राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा काफी साल तक कमाल की बैटिंग कर रहे थे, अब अचानक टीम में नंबर 3 पर एक ऐसे युवा खिलाड़ी को डाला है जिनका नेचुरल गेम है अब बॉल को मारो, नहीं बॉल पे नहीं चढ़ते। नंबर 3 बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में चढ़ते नहीं है बॉल के ऊपर, वो बेस सेट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो 2 माइंड से खेल रहे हैं। दिस इज माई रीडिंग ऑफ इट। Apex saying, how will ICC rate this pitch now? I still wouldn't call it a poor pitch, because there was no danger to the batsman. Yes, some good length balls sat up. It was definitely the quickest natured wicket I've seen in a long time. But poor, I don't know.
बट आप ये सोचिए अगर ये इंडिया होता तो भाई साहब ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ब्रिट्स और खासकर ऑस्ट्रेलियंस ये कितना चढ़ते इंडिया और बीसीआई के ऊपर. आई एम नॉट गोना से इट वाज पुअर. आई थिंक इट वाज more about some brilliant bowling and too many batsmen with not the required level of skill struggling against the bounce. That's my reading of it. Nomad is saying why Western media and commentators are not complaining the pitch. I think I just gave the answer because they're not quite sure. Just like me, they're not quite sure. I agree with you. Nobody wants to see a test match finish in 2 days. Bilkul, I'm on the same page. But was this pitch, was the bounce actually that variable? Not a single LBW in the test match. Yes, ball sat up more than usual. It was some brilliant bowling, some poor batting, a lot of doubt created by the extra pace of the wicket. Was it poor? I personally would say no. But yes, it's not ideal, far from ideal. ईशान शर्मा सेइंग सिराज से मुझे ऐसी स्पेल उम्मीद नहीं थी. नहीं, I have seen him bowl like this. I personally think it if you give Mohammad Siraj and Bumrah these kinds of tracks, they are going to win you a lot of test matches. लेकिन हाँ, वो conditions के हिसाब से मोहम्मद सिराज चलते हैं. Congratulations to Team India and thanks to you for your analysis in every match. Thanks for watching, Ishan. हार्दिक भाई कैसे हो? ये मैच नहीं मजाक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई वीडियो गेम खेल रहा है इजी मोड पर. हाँ, लेकिन इजी तो बिल्कुल नहीं था. ये एक बहुत बहुत कठिन टेस्ट था बल्लेबाजों का, बैट्समैन का, क्योंकि अभी देखो गुड लेंथ या अच्छी लेंथ की गेंदें अचानक बैट्समैन के थम्स पे यहां लग रहे. वो डेविड बेडिंगम वो मेरे ख्याल से 6 फुट से बड़ा है. बुमराह और सिराज उसको यहां खिला रहे हैं. नेसेसरली वो छोटी गेंदें नहीं थी, वो लेंथ बॉल्स थी या जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स जो तेज पिच के कारण उछल रहे थे. सो यस, नॉट अ गुड advertisement for test cricket. Nobody wants to see a test match over in 1.5 days. I get that. But I think more than saying कि ये पिच खराब थी, इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल, बहुत बहुत कठिन, ब्लडी टफ कंडीशंस में बैट्समैन के मन में जो डाउट क्रिएट किया गया था. I think as time goes on, more of us will start to understand it's probably that. But I'm not saying कि I'm in favor of such wickets. मैं ऐसे पिचेस के खिलाफ हूं क्योंकि 1.5 दिन भाई जैसे कि आपने कहा था मजाक है. Surya Vikram Singh saying, I think it was SAU played bad in this match. They were very, very bad with the bat. They bowled well, but they were bad with the bat. India has been consistently failing in batting. If this chase would have been above 50, yes, they would have lost for sure. I agree. I बिल्कुल बिल्कुल. क्या गिल सिर्फ अहमदाबाद का फ्लैट पिच प्लेयर है? नहीं, सिर्फ अहमदाबाद के फ्लैट पिच प्लेयर नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो स्टार कमिंस, लायन और जॉश हिजूर के सामने वो 90 नहीं मार पाते. लेकिन बहुत बार कह चुका हूं, शुभमन गिल अभी उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि जहां पे उनको खुद के ऊपर अब डाउट्स आएंगे कि भैया मैं सिर्फ थोड़े पाटा कंडीशंस पे या जहां पे बाउंस यहां तक आती है मैं उन कंडीशंस पे क्यों चल रहा हूं. ये वेस्ट इंडीज में बिल्कुल नहीं चले. वहां पे बाउंस अलग थी. धीमी गति के सीमर्स ने उनको बहुत परेशान किया और यहां पर उछाल ने उन्हें उन्हें खराब किया. लेकिन ये वो सीरीज है जहां श्रेयस अय्यर नहीं चले, जहां यशस्वी जायसवाल नहीं चले. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गिल सिर्फ एक ग्राउंड पे चलते हैं, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि अगर इंग्लैंड के पहले 3 टेस्ट मैच में वो नहीं चले, मैं उनको टेस्ट से बाहर कर दूंगा, इवन एट होम. Sports fan, with rank turners at home and spicy pitches away, how do we judge players' averages in tests? Don't read too much into stats nowadays. Stats have a lot to say, but because of what you've just asked me, rank turners will obviously limit a batsman's average. These pitches like Cape Town, they're also going to limit or reduce a batsman's average. By that token, I was quite shocked yesterday जब मैं पोर्ट ब्लेयर से निकला. पोर्ट ब्लेयर, बाय द वे, देयर इज जीरो नेटवर्क फॉर वोडाफोन और वीआई. तो मैच शुरू हो गया और मेरे पास फोन पे कुछ नेटवर्क नहीं था. फिर मैं कोलकाता गया 1.5 घंटे के फ्लाइट के बाद जब मैं वहां पहुंचा और मेरा 5G चला. So I opened the scorecard and I was able to catch up. I was catch up with the highlights. Now, a lot of people on social media, in the media, मैं खुद मेरे कुछ कॉलीग्स वो विराट कोहली के 46 को इतना चढ़ा रहे थे जैसे कि बंदे ने 180 मारे होंगे. भाई मैंने कहा आज क्या हम हर बड़े प्लेयर के 46 या 45 या 40 को हम इतना चढ़ाएंगे. रोहित शर्मा 39 was also a very very good knock in the conditions.
लेकिन उनके 39 के बारे में बात नहीं कर रहे, because I think people like you mentioned, sportsman, they're now going to start to give more weightage, maybe right, maybe I'm wrong, more weightage to smaller knocks. But if these smaller knocks start to significantly reduce a batsman's average, does that mean he's less of a player? I don't know. I would say, in brief, too many rank turners are not good for any batsman, and such wickets like Cape Town, they're also not good. You need to find a balance. There have been 41 Test matches for Team India in the last 5 years. If I'm not mistaken, 41 में से केवल 7 टेस्ट मैच आखिरी दिन यानी कि पांचवें दिन तक गया है. I think the bigger question to be asked is, why aren't batsmen able to bat as long? Anirudh is saying, sir, do you think Pakistan can break their losing streak in Australia? No, no, no chance, no chance. I think Pakistan teams overall ऑस्ट्रेलिया में केवल 4 टेस्ट मैच जीत चुके हैं और आखिरी वाला आया था 95 में. ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस टेस्ट मैच. आई हैव नो डाउट. ऑल्सो पाक वर्सेस ऑज मैच के बारे में कुछ बताइए. मैंने वही कहा था, आई रियली 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 बैड सीरीज. पाकिस्तान आर सो टेरेबल. आई सेड इट इवन बिफोर द फर्स्ट टेस्ट. किसी ने मुझसे कहा था या पूछा गया था मुझसे कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार पाकिस्तान कुछ कर पाएगी, और मैंने कहा नहीं. 0-3 टू ऑस्ट्रेलिया. भाई 2 टेस्ट मैच की सीरीज, क्या ये सही है? भाई आप शायद लेट आए हो स्ट्रीम पर. मैं कम से कम 10-12 बार कह चुका हूं, 2 टेस्ट मैच सीरीज जहां बड़े टीम्स खेलती है, कोई तुक नहीं है. सुबोर कह रहे क्या यशस्वी जायसवाल और गिल दोनों फ्रॉड प्लेयर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है. ये दोनों 10-12 साल, कम से कम 10 साल कम से कम देश के लिए खेलेंगे. नहीं, ये कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं बन पाएंगे, बट फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं है. If Shami comes in, who will be your fourth pace bowler in Sena countries? Um, I don't know. It's actually a very good question. शार्दुल का टाइम खराब चल रहा है. प्रसिद्ध का टाइम अब तक आया नहीं है, और मुकेश केवल 2 टेस्ट मैच खेल चुके. इट गोज बैक टू विवेक, जो मैंने कुछ समय पहले कहा था इस लाइव स्ट्रीम पर. इंडिया को सीरीज बाय सीरीज, कंडीशंस बाय कंडीशंस के हिसाब से एक टीम चुनना पड़ेगा. अब तक क्या है, 5 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स हर सीरीज में लेके जाओ. स्क्वाड में कह रहा हूं मैं, चाहे घर पे हो या बाहर हो. नहीं, आपने जडेजा से एक भी ओवर नहीं कराया इस टेस्ट मैच में. हाइंडसाइट की नजरिए से क्या फायदा? सो आई डोंट थिंक वी कैन से कि एक सेट टेम्पलेट है. अगर आप मुझसे एक नाम इन तीनों में से चाहते हो, आई वुड से मुकेश राइट नाउ. भास्कर कह रहे हैं इंडियन बॉलर की बैटिंग बहुत वीक, इसलिए लोड ऑर्डर जल्दी खत्म हो जाता है. भाई ये 25 साल से चल रहा है. बिल्कुल सही कह रहे हो. Nimesh saying sometime turning track backfire. We should not forget 2012 series, Monty Panasa and Graham Swan. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इस बार मेरा गट फीलिंग है इंडिया हारेगी नहीं अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन ये वो सीरीज भारी पड़ सकता है टीम पर, क्योंकि हमारी बैटिंग काफी खराब है स्पिनिंग कंडीशन में. अंकुश पूछ रहे सर आप कहां से हो? दोस्तों बताइए अंकुश को. पहले इनका स्वागत करिए चैनल पर प्लीज. अंकुश लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. बाकी भाई लोग आप बताइए इस भाई को कि मैं कहां से हूं. भाई मैं सपना देख रहा हूं क्या? नहीं, इंडिया जीत गई भाई. जॉन डियर, 3 मैच की सीरीज होती तो हम जीत जाते. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं. मैंने सीरीज की एक गेंद डालने से पहले कहा था कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज कोई तुक नहीं, क्योंकि जो टीम पहला मैच जीत जाती है वो सीरीज हार नहीं पाती, और बेचारी जो टीम हारती है पहला मैच, उस टीम के ऊपर इतना दबाव है दूसरे और तीसरे मैच जीतने के लिए. तो नहीं हुआ. गुरुदत्ता कह रहे हैं मुझे लगा है इंडिया को डब्ल्यूटीसी खेलने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हारना पड़ेगा. बिल्कुल, अभी यहां से हर सीरीज जीतना पड़ेगा भाई. Vivek is saying, is the end of Ashwin a test? Absolutely not. Ashwin will play every single test match at home and in Asia. Ashwin's got, I mean, I've been saying this for now since the World Cup WTC final. Ashwin's got 2.5 years left in his career. Not a doubt. हाँ, बाहर नहीं खेलेंगे ज्यादा, but in India, हर मैच खेलेंगे. He'll take 30-35 wickets against England in these 5 test match series. Can we see Kuldeep Yadav in test? Unfortunately, he's even behind Akshar Patel when it comes to home test matches. So उनको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा. बहुत बहुत ये बात मैं कह चुका हूं. Puneet Singh is asking, what's your thought on Indian test batting lineup in coming years? There's a very dark phase coming. It started, it's a very dark phase coming. बहुत बार कह चुका हूं. Can we find solid test batters? It's going to be very tough, my friend. Too much T20. Ankush is saying, according to you, who's the best captain of Indian team overall in the history of it? Um, very tough for me to look, despite some obvious shortcomings.
What Virat Kohli did to make Indian team consistently good overseas, हाँ हर जगह नहीं जीत पाए, पर एक जो बिलीफ, एक अग्रेशन, एक पांच बॉलर्स खिलाने का जो एक स्ट्रेटजी विराट कोहली ने अपनाया और एक अच्छे हद तक उन्होंने उसको कंटिन्यू किया. For me, Virat Kohli is not tactically the best. I think Saurav Ganguly was better tactically. I think MS Dhoni had an extreme superb ability to turn matches with his thinking. विराट के पास शायद वो कला नहीं थी, but just for getting the team ready to compete everywhere, they didn't always win. They didn't always win. They didn't win in South Africa. They didn't win in New Zealand. They had the upper hand in England. They lost in England quite badly, 4-1 in Virat's first tour there as captain in 18. But overall, despite some obvious shortcomings, I think Virat Kohli, to my mind, would be India's best Test captain. Not because of tactics, not because of of something he did, but the aggression, the belief, leading as a batsman. For me, it'll be him. 3 मैच टेस्ट बिल्कुल. मैं तो कहता हूँ 3 दिन में एक डिसाइड भी करवा लो भाई. चांस अच्छा है. 2 टेस्ट मैच 5 साल में खत्म हो गया है. भाई केएल राहुल कीपर इन टेस्ट, ना ना, डिजास्टर डिजास्टर डिजास्टर. Baseball, cricket destroying the records of Joe Root. Well, to a certain extent, James Anderson as well. बिल्कुल आशीष मणि तिवारी जेमी सर इंडिया से हैं. नो व्हाट विल बैसबॉल इन गुड. बैसबॉल ओनली वर्क्स. मैं बहुत बार कह चुका हूं. प्लीज आप मेरी बात को सुनिए. इस बात को थोड़ा गौर करिए. बैसबॉल सिर्फ और सिर्फ पाटा विकेट्स पे चलता है. कैन वी क्वालिफाई फॉर WTC फाइनल्स अगेन? कैन, यस. Will, I don't know. Surya Vikram saying, should India turn to split captains and white ball red cricket? Absolutely, long overdue. If Pant comes back, then Iyer out. Bilkul. Pant is unbelievable. Forget Sena. Pant is unbelievable in wherever he plays. He is India's. बहुत बार कह चुका हूं. He is India's, and I don't like the term that much. He's India's GOAT when it comes to Test wicketkeeper batsman in Test cricket. Anyway, guys, good to be back. I had a nice 5-day, 4-day break in the Andamans. Missed some shows, but I'm back. और मैं आपसे इस हफ्ते हर दिन जुड़ूंगा इसी लाइव चैनल पर. नए साथी जो आए हैं, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. पुराने वाले लाइक ठोकिए. गुड टू हैव यू ऑल बैक. अगेन द मैच ओवर इन 2 days. 3 दिन फ्री हूं मैं, लेकिन कुछ टॉपिक सोचूंगा, कुछ डिस्कशन करेंगे आप और मैं. और फिर सिर्फ 7 दिन के बाद एक T20 सीरीज शुरू होने वाली है between India and Afghanistan. So lots to talk about. Happy New Year, by the way. It's my first show of the new year, first show of 2024 here for all of you lovely people. Thank you all. You have a great day. कल मिलते हैं आपसे. Take care. Jai Hind.